In this class, we'll be studying the male reproductive system. So we have already studied about various events of reproduction, and in those events, we had studied from the gametogenesis to the last event, that was parturition. So for gametogenesis to occur, there should be a structure, or there should be some supportive tissue and a whole apparatus because of which that gametogenesis will take place. So in the case of males, that gametogenesis is called as spermatogenesis, which is the production of sperms, and therefore we will have to study the structure in which spermatogenesis takes place, and also the various other assisting or the accessory structures of that system. And this whole apparatus that is formed by the primary sex organ in the males, that is the testis, and also the various accessory parts, all these structures together are called as male reproductive system. So the location of the male reproductive system is in the lower pelvic cavity, that is in the lower pelvic cavity or the lower abdominal cavity. This whole apparatus is located, but the testis is located out of the body in something called as scrotum. So first let's look at the location of the male reproductive system. So located in the pelvic region, so it is located in the pelvic region, which is normally on the inside of the pubic bone, and specialized in formation. Now these are the functions of the male reproductive system, yani ki formation, storage, nourishment and conduction, or we can also say that transport of sperms. So instead of conduction we could say transport of sperms. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. उसके अलावा उसके फंक्शंस क्या क्या है, तो प्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन, जो स्पर्म्स का बनना है, उसके अलावा उनका स्टोरेज, क्योंकि जब स्पर्म बनते हैं तो उसी समय बॉडी के बाहर से स्पर्म्स नहीं निकलते हैं, उनको स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम तक. देयर आफ्टर अगर हम स्पर्म को स्टोर कर रहे हैं तो उन्हें नरिशमेंट की भी जरूरत होगी. सो दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म्स. And at last, what is the purpose of the sperm? To go into the female genital tract, and that is called as conduction or the transport. So these are the four functions of the male reproductive system, that is formation, storage, nourishment and conduction or transport. So these are the functions of the male reproductive system. Now we see what are the structures which are making this male reproductive system. So the most important structure of the male reproductive system is obviously the testis. So we might have studied about two type of organs. One is the primary sex organs and the other is secondary sex organs or the accessory organs. So in males, testis is the primary sex organ, but in females, ovary is the primary sex organ. So the most important organ or the structure which is the most important in the case of male reproductive system is the testis. And after the testis, we have to study about various accessory ducts. So these accessory ducts could differ from the vas deferens or the vasa efferentia or various other ducts like urethra. So we are going to study about those ducts also. Apart from that, we have to study about a few glands which are necessary for the proper transport and nourishment of the sperms. Those glands are normally called as seminal vesicles or the prostate gland or the bulbourethral gland. And after these three, we have to study about the external genitalia, which is the external accessory sex organs like the penis. So we are going to study about those things also. So these things, that is the testis, the accessory ducts, the accessory glands and the external genitalia, that is the penis in the case of males. So all these structures together form the male reproductive system, and obviously the testis is the primary reproductive organ or the primary sex organ, and the other are accessory structures. So this is the difference between these two. So when we talk about primary sex organ or primary sexual structure, the function of a primary sexual structure is formation of sperm or the male sex cell and also the sex hormones. For example, in the case of males, we have to study about a sex hormone which is called as testosterone. So the primary function of the primary sex organ is production of gametes, that is sperms or ovum, and also the secretion of sex hormones like testosterone or estrogen in the case of females.
So now we have to look at the male reproductive system part by part, and we are going to start with the scrotum. So this scrotum is the external part, that is the very external organ in the case of male reproductive system, and also penis is also a male external genitalia. So we have to start from scrotum. तो ये जो स्क्रोटम होता है हमारा, दिस इज अ डीपली पिगमेंटेड स्किन. तो ये हमारी बॉडी के बाहर में एक पाउच की तरह लोकेटेड होता है. इट इज अ पाउच लाइक ऑर्गन एंड इट इज डीपली पिगमेंटेड. डीपली पिगमेंटेड कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्किन टोन होता है उससे कहीं ज्यादा मेलानिन पाया जाएगा. यानी कि किसी भी इंसान का जो भी स्किन टोन है, चाहे वो फेयर हो या सांवला हो या उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, लेकिन जो उसका टेस्टिस का जो बाहर का कवरिंग है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, उस स्क्रोटम का जो मेलानिन होगा या फिर उसका जो कलर होगा स्किन टोन से हमेशा डार्कर होगा, हमेशा ही डार्कर होगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन हैविंग टू सेपरेट सेक्स. अब ये जो स्क्रोटम है, जो बाहर की ओर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो सैक होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर में दो टेस्टिस भी होते हैं. तो दो सैक है स्क्रोटम में और दो टेस्टिस है, यानी कि एक टेस्टिस जो होगा स्क्रोटम के एक सैक में होगा और दूसरा टेस्टिस स्क्रोटम के दूसरे सैक में होगा. तो स्क्रोटम के बारे में ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इट इज अ पाउच जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें डीपली पिगमेंटेशन है, इसके पास दो सेपरेट सैक्स है, यानी कि यहाँ पर दो चेंबर है या दो कंपार्टमेंट है और हर एक सैक में या हर एक चेंबर में या हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस पाया जाता है. Now this is the location of the testis inside the scrotum. Now we have to understand the other points about scrotum, and these are the testis are externally located. Now the question is arising, why testis are externally located in the scrotum? Why can't the testis be internally located in the lower abdomen or the pelvic cavity? So the problem is that for testis formation, maturation and the various development of the testis, we require a small difference of from the body temperature, that is of 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस. यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम चाहिए होती है. यानी कि जो ये टेम्परेचर है हमारी बॉडी टेम्परेचर, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए होती है. अब यहाँ पे इसीलिए ये टेस्टिस जो है ना एक्सटर्नली लोकेटेड है. अब अगर हम बात करें, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. दिस इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और यहाँ कह रहा है कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शुड बी लोअर देन दिस टेम्परेचर. सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट दिस टेम्परेचर वुड बी समवट 34 to 35 डिग्री सेल्सियस अराउंड दैट. So obviously that temperature is required for the normal maturation and the development of the sperm. So for the normal development and the maturation of the sperm to occur, this temperature is required. And if the testes are away from the body, they will not be affected by the normal body temperature, that is 37 degrees Celsius. That is why the testes are located outside the body. Now ये जो टेस्टिस है उसे टेम्परेचर चाहिए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन विंटर्स में ये टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है, यानी कि 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, डिपेंड करता है कि आप विंटर में किस जगह पे हो. आप शिमला में हो तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे भी होगे, कश्मीर में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाता है टेम्परेचर. लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ वैसा टेम्परेचर नहीं होता है. तो अब विंटर में किस जगह पे हो वो भी मैटर करता है, या जो हमारा वेदर है वो कैसा है. तो जब वेदर काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है, यानी कि बॉडी ठंडा हो जाता है हमारा, तो टेस्टिस के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले, उन्हें कहते हैं डार्टोस मसल. तो ये जो डार्टोस मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमारा जो स्क्रोटम है उसके अंदर ये डार्टोस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो अगर बाहर का वेदर ठंडा है तो हमारा स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और टेस्टिस को बॉडी के पास में ले आएगा. तो बॉडी के पास में आएगा तो टेस्टिस को हीट मिलेगा. तो टेस्टिस को तो बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन इतना भी कम तो नहीं चाहिए कि 15 to 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए टेम्परेचर.
तो इसीलिए जब बाहर का वेदर काफी ज्यादा कोल्ड होगा तो स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और टेस्टिस को बॉडी के क्लोज लाएगा। तो बॉडी के क्लोज लाने पे बॉडी का जो हीट है वो टेस्टिस को ट्रांसफर होगा, यानी कि टेस्टिस को जो टेम्परेचर चाहिए बॉडी उसे प्रोवाइड कर सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द वेरियस वेरी हॉट क्लाइमेट एरियाज लाइक द थार डेजर्ट और इन एनी प्लेस where the temperature is above 37 degrees Celsius. So if we talk about any place which has a temperature of above 37 degrees Celsius, then in that case the body gets heated. So in that case the scrotum becomes loose and the testes move far from the body. So they will not be affected by the high heat of the body. So when the weather is cold, the scrotum contracts. When the weather is hot, the scrotum relaxes. So when the weather is hot, the scrotum relaxes and keeps the testis away from the body. When the weather is cold, the scrotum contracts and brings the testis closer to the body. So this is a sort of a temperature regulation in the testis. So this mechanism of contraction and relaxation in the scrotum keeps the testis closer to the body or away from the body for an optimal temperature. That is what the scrotum is doing. Now we come to the other part. The scrotum remains connected. So now we have to understand जो हमारा scrotum है वो हमारे abdominal cavity के साथ या फिर जो lower pelvic cavity है उसके साथ कैसे जुड़ा रहता है। तो उसके साथ एक कैनाल होता है जिसके थ्रू जुड़ा रहता है, उस कैनाल को हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल। सो ये जो इंग्विनल कैनाल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसी से टेस्टिस स्क्रोटम में आता है। अब आपने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है कि जब बेबी का फॉर्मेशन होता है, मेल फीटस का फॉर्मेशन होता है, तो जो टेस्टिस होता है एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन 7वें 8वें महीने के आसपास टेस्टिस एब्डोमेन से चला जाता है स्क्रोटम के अंदर। लेकिन ये कहां से जाता है, तो जिस पाथ से जाता है यानी कि एब्डोमेन से स्क्रोटम का जो कनेक्टिंग कैनाल होता है उसे कहते हैं इंग्विनल कैनाल। So before birth the testis descend into the scrotum through the inguinal canal, यानी कि पहले टेस्टिस तो बने थे एब्डोमिनल कैविटी में लेकिन वहां से जाएंगे वो स्क्रोटम में इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू। और अगर टेस्टिस नहीं गए स्क्रोटम में तो टेस्टिस फंक्शन नहीं करेंगे और वहां पे स्टेरिलिटी हो जाएगा, यानी कि वैसे मेल्स फादर नहीं बन सकते हैं। तो टेस्टिस का स्क्रोटम में जाना थ्रू द इंग्विनल कैनाल बिफोर बर्थ is extremely necessary, otherwise the male will not be able to reproduce or will not be able to become father. So this is the important. Now an internal septum, that is septum scroti, ऊपर में हमने पढ़ा था कि टेस्टिस में दो सेपरेट सैक्स होते हैं, यानी कि उन दोनों सेपरेट सैक को बीच में डिवाइड करने वाला तो कोई होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सेप्टम स्क्रोटी, यानी कि एन इंटरनल सेप्टम स्क्रोटी, यानी कि टेस्टिस दोनों टेस्टिस को एक दूसरे से अलग रखने वाला जो वॉल होता है, जो सेप्टम होता है, उसे हम कहते हैं सेप्टम स्क्रोटी। और इसका जो बाहर वाला अपीयरेंस होता है, अंदर से है सेप्टम स्क्रोटी, ये टेस्टिस के अंदर, ये स्क्रोटम के अंदर की बात हो गई। तो स्क्रोटम के अंदर दोनों सैक्स को सेपरेट कर रहा है, यानी कि जो स्क्रोटम के अंदर 2 सेपरेट सैक्स है उसको सेपरेट कर रहा है सेप्टम स्क्रोटी। लेकिन बाहर से भी ये जो सेप्टम है विजिबल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रैफ है। तो जो हमारा स्क्रोटम है उसको सेपरेट कर रहा है दोनों सैक को सेप्टम स्क्रोटी। लेकिन इसी का अगर हम टेस्टिस को बाहर साइड से देखें या फिर स्क्रोटम को बाहर साइड से देखें तो हमें एक लाइन दिखता है जो कि सेपरेट करता है दोनों साइड को, उस लाइन को या उस रिज को हम कहते हैं रैफ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ फाइब्रस कॉर्ड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक फाइब्रस कॉर्ड के बारे में जिसे कहते हैं जुबर्नकुलम। तो जुबर्नकुलम जो होता है स्क्रोटम के वॉल से टेस्टिस के नीचे वाला पार्ट उसे हम बोलते हैं कॉर्डल पार्ट। तो जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो टेस्टिस में हम 3-4 पार्ट पढ़ेंगे। तो एक होता है सबसे ऊपर को कैपुट बोलते हैं और सबसे नीचे को बोलते हैं कॉर्डा। वी विल लर्न अबाउट दिस कैपुट और द कॉर्डल पार्ट ऑफ द टेस्टिस इन द टेस्टिस सेगमेंट। सो ये जो टेस्टिस का लोअर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्डल पार्ट, तो कॉर्डल पार्ट से स्क्रोटम का वॉल से जुड़ा रहता है कॉर्ड, उसे हम कहते हैं जुबर्नकुलम। तो टेस्टिस का स्क्रोटम में आना इस जुबर्नकुलम पे काफी हद तक डिपेंड करता है।
जो भी पार्ट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं या जो भी पार्ट्स मैंने स्क्वायर में डाले हैं, रिमेंबर दीज things are the most important things about this discussion. So always focus on those parts which I have squared or either I have underlined those things. So like that, this dartos muscle. तो जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम आखिर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किसकी वजह से कर पा रहा है? डार्टोस मसल की वजह से। और ये मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल होते हैं। स्मूथ का मतलब होता है कि उन पे स्ट्राइएटेड अपीयरेंस नहीं होता है। दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी, यानी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दीज थिंग दैट आई हैव स्क्वायर्ड और द अंडरलाइंड, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम बैक टू जुवेर्निकुलम। तो ये जो जुवेर्निकुलम होता है, इसे हम टेस्टिस के फॉर्म में, टेस्टिस वाले सेगमेंट में फिर से पढ़ेंगे। तो जुवेर्निकुलम स्क्रोटम के लोअर वाले, अंदर वाले पार्ट से टेस्टिस के लोअर पार्ट से जुड़ा रहता है, और टेस्टिस को स्क्रोटम में खींचना इस जुवेर्निकुलम पे डिपेंड करता है बहुत हद तक। नाउ वी कम टू द स्क्रोटल एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। तो स्क्रोटम ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा था कि डीपली पिगमेंटेड होता है, इसका मतलब कि स्क्रोटम काफी डार्क अपीयरेंस का होगा। उसके अलावा स्क्रोटम पे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड होते हैं, उसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयली ग्लैंड होते हैं वहां पर, उसके अलावा उस पे स्पेर्स हेयर होते हैं, ये हमें याद रखना है। स्पेर्स हेयर कहने का मतलब है, स्पार्स हेयर कहने का मतलब है कि हेयर्स काफी डेंस नहीं है, बियर्ड्स या हेयर्स की तरह डेंस हेयर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेस्टिस स्क्रोटम में हेयर्स हैं जो कि दूर दूर है। स्पेर्स का मतलब होता है कि घना नहीं है, यानी कि बियर्ड्स की तरह या हेयर या मुस्टेशेस की तरह डेंस हेयर नहीं है। स्पार्स मतलब दूर दूर वहां पर हेयर्स है। उसके अलावा यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा स्क्रोटम होता है उससे एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर निकलता है, एक सर्टेन स्मेल निकलता है। उसके अलावा वहां पर कुछ स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, जिसे ऑब्वियसली स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग नहीं होता है। एंड दीज सेबेशियस ग्लैंड्स व्हिच आर certain oil producing glands, these are also a sort of glands located at the or the on the external surface of the scrotum. Now we come to this spermatic cord. अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस को चाहिए न्यूट्रिशन, यानी कि उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, उसके बाद उसको कंट्रोल करने वाला नर्व्स भी होना चाहिए, तो नर्व्स भी चाहिए। उसके अलावा उसमें सर्टेन कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, तभी तो कोई भी पार्ट जुड़ा रहेगा किसी दूसरे से। तो बेसिकली जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से इंग्यूनल कैनाल के थ्रू जाके किससे जुड़ा रहता है? टेस्टिस से जुड़ा रहता है। अब टेस्टिस को ब्लड चाहिए तो ब्लड वेसल, उसके बाद यानी कि आर्टरी वेन हो गया जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, उसके अलावा नर्व बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है बेसिकली इंग्यूनल कैनाल के थ्रू होते हुए हमारे टेस्टिस से जुड़ा रहता है, और उस टेस्टिस से जुड़ा रहता है तो उसमें क्या क्या आखिर इसमें जरूरत है? तो इसके अंदर ब्लड वेसल है, नर्व्स हैं, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो बेसिकली ये टेस्टिस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड हैं उसमें मेनली यही सारी चीजें हैं, यानी कि स्पर्मेटिक आर्टरी और वेन, नर्व्स, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू। So these things are very important. ये जो हमारा spermatic cord है, it's a sort of row, it's a sort of thick connective tissue like structure, और उसके अंदर क्या क्या है? हमारे spermatic cord है, हमारे veins हैं, nerves हैं, और arteries हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ में connective tissue बांध के रखता है, और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है एब्डोमिनल कैनाल से या एब्डोमिनल कैविटी से इंग्यूनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस से जाके जुड़ा रहता है। सो दिस वाज अबाउट द स्क्रोटम। So we have studied about the first part of the male reproductive system, that is the scrotum. और स्क्रोटम में हमने देखा कि उसका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से लेकर इंटरनली क्या सेप्टम है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसके अलावा उसके अंदर से कौन सी चीजें पास कर रही है, उसके अंदर कौन है। So these are the normal things that we had to study about scrotum. So after scrotum we have to study what is inside the scrotum, and that is obviously the testis. So now we will study about testis.